Good evening, students. In continuation of our last lecture, that is the organic manures, we have already done the bulky organic manures, and today we will cover the concentrated organic manures, the second type of organic manures. So, what are concentrated organic manures? Concentrated means something thick or something more than the other. Why this is known as the concentrated? Because they have more nutrient content than the bulky organic manures. So different types of concentrated organic manures: oil cakes, blood meal, fish manures. We can call them organic nitrogen fertilizers also, because the organic nitrogen in these type of fertilizers, or the content of organic nitrogen, is high in compared to bulky organic manures. But this nitrogen is produced with the help of living organism, that is the bacteria, and the form of that nitrogen that is prepared with the help of bacteria is ammonical nitrogen, or nitrate form of nitrogen. What's the beauty of these fertilizers? They are relatively slow acting, but they supply nitrogen for a longer period. Slow acting means they dissolve in the soil comparatively at a low pace, what they supply nitrogen for a longer period. So first type of concentrated organic manure is oil cakes. What are oil cakes? This is prepared from the oil seeds. The oil is extracted from the oil seeds, and after extracting the oil, the remaining part of the seed is dried in the form of cake, and that is known as the oil cake. There are two types of oil cakes. One is edible and other one is the non-edible. Edible, that means they can be safely fed to livestock. They can act as a food for the livestock. Livestock means the animals that we rear at home, or that we used by the farmers in the agriculture. So they can be used by the animals as a food. For example, groundnut cake, coconut cake. And what are non-edible? Which are not fit for the livestock, means animals cannot eat them. For example, castor cake, neem cake, and mahua cake. The edible and non-edible oil cakes can be used as a manures. Both can be used as a manures. Nutrients present in oil cakes after mineralization, that is available to crops in 7 to 10 days after application. Before application, we have to ground it, or the size should be lower down. That means it will be well powdered, so that its distribution will be equal and its decomposition will be quicker. So average nutrient content of different oil cakes, we can see what are the nutrients that are present in the oil cakes in this table. We have discussed there are two types of oil cakes: नॉन एडिबल, जो कि नॉन एडिबल वो वाले ऑयल केक्स जो एनिमल्स जो हैं दे कैन नॉट ईट, एंड एडिबल आर दोज ऑयल केक्स दैट एनिमल्स कैन ईट. सो नॉन एडिबल केक्स कौन से हैं? कैस्टर ऑयल है, एक्सक्यूज मी, और कॉटन सीड केक हैं, क्रंची हैं, महुआ हैं, एंड सेफ्लावर है. इसी तरह से एडिबल में कोकोनट है, कॉटन है,
कॉटन सीड केक हैं, ग्राउंडनट हैं, लिंसीड है, नाइजर एंड रैपसीड है। इसमें N P2O5 K2O का कंटेंट जो है अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है इसमें जो है 3% से लेकर मैक्सिमम 7.3% है। P2O5 जो है दैट इज़ 0.8 से लेकर 2.9 मैक्सिमम, एंड K2O इज द नियर अबाउट एवरेज 1.2 से लेकर 2.2. So this is the content that is present in the oil cakes. And then is the blood meal. Blood meal जो है वो कैसे हम बनाते हैं? When dried and powdered can be used as a manure, and meat of dead animals that is dried and then is converted into the meat meal, and it is a good source of nitrogen. जो एनिमल्स डेड है उनकी अगर हम बोन्स या उनके मीट को क्या है हमने ड्राई करने के बाद, ग्राउंड करने के बाद, ग्राइंडिंग के बाद उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. सो दीज आर द concentrated organic manures that we can apply for the good crop yield. And what are the commercial organic fertilizers? Commercially that is present in the market. मार्केट में कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो अवेलेबल हैं? जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स है वो हमने लास्ट टाइम की थी, और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन दैट इज़ देयर, बट अगर इनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग में वो प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं उनको हम कमर्शियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, जिनको हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके मार्केट में जो है मार्केट में हम सेल कर सकते हैं. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या हुई? मैन्योर्स तो आपको मैंने बता दी हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या है? दे कैन डिफाइंड एज द मटीरियल दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन और मोर मटीरियल ऑफ बायोलॉजिकल नेचर एंड और unprocessed mineral material that have been altered through controlled microbial decomposition into a homogeneous product which sufficient amount of nutrient to be valued as a fertilizer. ठीक है. Usually they must contain a NPK, that is the 5% nutrients. ठीक है. NPK और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है? इसमें हमने क्या है, ये जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार करना है उसके लिए हमने मटेरियल जो लेना है दैट शुड बी बायोलॉजिकल, मीन्स समथिंग लिविंग. लिविंग मीन्स प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं. उसको हम अनप्रोसेस्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. तो जो अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड मिनरल मटेरियल जो है वो हमने लाइम लेना है. लाइम दैट हैव बीन अल्टर्ड थ्रू कंट्रोल्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन. लाइम के ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिग्रेड, लाइम को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने डिग्रेड करने देना है, मतलब लाइम को हमने डिग्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दैट जो हमारे पास प्रोडक्ट आए वो एक ऐसी फर्टिलाइज़र हो जिसमें NPK जो है एक अच्छी रेशो में हो, और ऐसी रेशो हो जिससे प्लांट जो है वो यूटिलाइज़ कर पाएँ. सो जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ करना है उसके लिए हमने उसकी जो प्रोसेसिंग करनी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस्ड हो, लेकिन अगर हमें प्रोसेसिंग करनी है तो उसकी प्रोसीजर क्या है? ड्राइंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, ग्रेनुलेटिंग हो सकता है, ऑर्डर रिमूवल, pH मॉडिफिकेशन हो सकती है, फर्मेंटेशन हो सकती है, कंपोस्टिंग हो सकती है. तो ये सारी प्रोसेस जहाँ हम जो है अंडर प्रॉपर हाइजीन कंट्रोल के अंदर हमने इसको मटेरियल को क्या करना है? प्रोसेस करना है. तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसकी जो CN रेशो होती है, कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो एक डेफिनेट रेशो आएगी, जो कि न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट जो है इसमें ये होता है कि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अगर हम मार्केट में लेके आएंगे तो वो उसके मार्केट के स्टैंडर्ड को क्या है? जस्टिफाई करेगा.
तो अब नेक्स्ट हमारा है बायो फर्टिलाइजर्स। क्या है बायो? यहाँ पे वर्ड आता है, बायो का मतलब होता है समथिंग लिविंग। तो इसको हम बायो फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र क्या है, खाद्य हैं। तो इसको हम माइक्रोबियल इनोकुलेंट भी बोलते हैं। माइक्रोबियल इनोकुलेंट मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हमने खाद्य बनानी है उसको हम माइक्रोबियल इनोकुलेंट कहते हैं। तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि लिविंग और डॉर्मेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल उसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, एल्गी हैं, या इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं। उनको जब हमने डायरेक्टली अप्लाई करना है, किसके लिए, प्लांट को देना है, सो दैट दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और सॉल्युबलाइज या मोलिबलाइज सॉइल न्यूट्रंट्स, जो ऑलरेडी सॉइल में जो न्यूट्रंट्स हैं उनको वो सॉल्युबलाइज कर लें। तो उससे क्या होएगा, जो ग्रोथ होएगी प्लांट की वो अच्छी होएगी। तो इसको हम बोलते हैं बायोनोकुलेंट्स और माइक्रोबियल कल्चर्स। और ये काफ़ी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो है जैसे बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे हम यूज़ करते हैं उसमें जो एनवायरमेंटल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जो इसमें है बायो फर्टिलाइजर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बायो फर्टिलाइजर्स जो है इसकी 4 कैटेगरीज हैं। एक जैसे हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। एक जो है पी सॉल्युबलाइजिंग, ठीक है, या मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इसको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी एग्जांपल आपको पता ही है, जड़ों में राइजोबियम होता है, अजोटोबैक्टर होता है, एजोस्पिरिलम होता है, क्लॉस्ट्रीडियम होता है, या एसिटोबैक्टर होता है। सो बीजीए जो है या साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए का फुल फॉर्म है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, या फिर एजोला है, ये सारे जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस एक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देते हैं। तो ये भी एज अ फर्टिलाइजर यूज़ हुए। तो जो फॉस्फेट जो सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें हमें फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया चाहिए या फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, जिनकी एग्जांपल है जैसे बेसिलस हो गया, सीडोमोनास हो गया, स्पर्जलस हो गया, माइकोराइजा हो गया। ये सारे के सारे जो हैं, या कुछ एक फंगस हैं, ये क्या हेल्प करते हैं। फंगस एक होती है वेस्कुलर और बस्कुलर माइकोराइजा, वी ए माइक्रोवाइजा या वैम फंगस हम बोलते हैं। ये बहुत हेल्प करती हैं प्लांट्स को इसकी केस के लिए, पी सॉल्युबलाइजेशन के लिए। तो ये भी एज अ बायो फर्टिलाइज़र ही एक्ट करती हैं। ये सेकंड टाइप की है। थर्ड टाइप की कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर्स होते हैं। कंपोस्टिंग एक जो एक्सीलरेटर्स होते हैं वो मोस्टली सेलुलिटिक इन नेचर होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, या लिग्नोलिटिक होते हैं जैसे ह्यूमी ह्यूमिकोला है। ये भी एज अ फर्टिलाइजर एक्ट करते हैं। 4 टाइप है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, पीजीपीआर इसको बोलते हैं। पीजीपीआर है, ये मोस्टली इसमें सीडोमोनास ही आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मोस्टली प्लांट के ग्रोथ को एनहांस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। रादर ये फर्टिलाइज़र जो है वो प्रोवाइड नहीं करते या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। इनका जैसे नाम ही लिया, ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, तो ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र जो हमने फर्स्ट टाइप की है वो है कि वो वाली फर्टिलाइज़र जिसमें लिविंग जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी होती है, और जब हम सीड को या प्लांट के सरफेस को या सॉइल में हम इसको डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो ये क्या कॉलोनाइज मीन्स पकड़ लेता है राइजोस्फीयर और द इंटीरियर ऑफ द प्लांट। राइजोस्फीयर या इंटीरियर ऑफ द प्लांट होता है कि रूट्स वाला जो पार्ट होता है, जो रूट्स के बिल्कुल पास, जहाँ सॉइल से जो अपने न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये सक करते हैं, उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं। एंड ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं कि क्योंकि ये सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू द होस्ट प्लांट, इससे क्या होएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी सप्लाई जो है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ क्या है वो अच्छी हो जाएगी। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र में हमने करना है कि कौन कौन से। पहला हमने किया था कि उसमें एग्जाम्पल किया राइजोबियम। राइजोबियम है क्या? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है,
ठीक है, ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये मेंटेन करता है विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फलदार पौधे होते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का होता है कि दो स्पीशीज़ हैं, दोनों दोनों जो है आपस में बेनिफिटेड है। बेनिफिटेड मतलब दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो वो दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे क्योंकि दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। जैसे फ़ायदा कैसे हो रहा है दोनों को, मतलब राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसने अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ बनाया हुआ है, फलदार पौधों के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। और इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, आपको पता 78% एटमॉस्फेयर में की है नाइट्रोजन गैस है, एयर में है, उसकी जो फिक्सिंग करते हैं, कौन करते हैं, ये बैक्टीरिया। ठीक है, ये फिक्स करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम आयंस में। ये जो अमोनियम आयंस हैं ये किस लिए कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट यूटिलाइज करता है। सो प्लांट इन टर्न क्या देता है, प्लांट इन बैक्टीरिया को क्या देता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, इनको क्या फ़ायदा हुआ, देखो बैक्टीरिया ने तो क्या किया, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे दी। ठीक है, उसका जो नाइट्रोजन का फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब प्लांट ने बैक्टीरिया को क्या, प्लांट ने बैक्टीरिया को शेल्टर दिया, रहने के लिए जगह दी। ठीक है, और जो दीज बैक्टीरिया सर्वाइव इन द सॉइल एज स्पोर्स, सो वेयर अ रूट of a compatible species grow close to the spore, recognition occurs and the symbiosis begins. So root जो है वो respond करती हैं by multiplying cell and these form the nodule. अब अगर आपने ये देखना है कि जड़ों में बैक्टीरिया है या नहीं, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं ये राइजोबियम, जो फलदार पौधे उनकी जड़ों में। तो आपने ये कैसे इसको देख सकते हैं कि यू अपरूट अ प्लांट, ये मोस्टली अगर आपने देखना है तो जैसे आजकल पी प्लांट आपको मिल जाएगा आराम से खेतों में, तो अपने पी प्लांट को क्या करना है, अपरूट करने के बाद वॉश द रूट्स इन अंडर द टैप वाटर, जेंटल टैप वाटर। तो उसको आप उसकी जो रूट्स है, रूट्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ थंब एंड योर मिडल फिंगर, उससे आप देख सकते हो, या नेकड आई से भी देख सकते हो कि उसके ऊपर क्या होते हैं, नड्यूल्स होते हैं। आई रिपीट, किस प्लांट में देख सकते हो, इन द पी प्लांट। पी प्लांट आजकल कॉमन है, अभी मिल रहा है, तो उसमें आप रूट नड्यूल्स देख सकते हो। अगर आपने राइजोबियम देखना है तो आप रूट नड्यूल को स्लाइड के ऊपर रख के क्रश करके अंडर माइक्रोस्कोप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एनीबॉडी इंटरेस्टेड दे कैन कम इन द लैब एंड आई कैन शो देम द राइजोबियम इन द नड्यूल्स ऑफ द पी प्लांट। सो ये रूट नड्यूल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और जो टेम्परेचर इनके ग्रोथ के लिए चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, pH 6 to 7 होना चाहिए। राइजोबियम जो है वो उस किस में होता है, जैसे पल्सिस हैं, पल्सिस में भी देख सकते हो, ऑयल सीड्स में भी देख सकते हो, फॉरेजेस में भी ये होता है। सो राइजोबियम जो है इसकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग प्लांट्स में। जैसे चिकपी है, चिकपी में जो आपको राइजोबियम मिलेगा, उसकी जो स्पीशीज़ है उसका नाम है राइजोबियम साइसीरी एटली जो है वो है बीन्स के अंदर आपने देखना है, बीन्स के प्लांट में भी आप देख सकते हो, बेल के अंदर देख सकते हो। इसे जपैनिकम जो है ये वैरायटी होती हैं मोस्टली सोयाबीन में, सोयाबीन की बेल में भी आप लेग्यूमिनोसेरम जो है, लेग्यूमिनोसेरम जो है ये पीस, जैसे मैंने बताया उसमें ये जो वैरायटी होती हैं, लेग्यूम से आया ये लेग्यूमिनोसेरम, ये पीस में है, बीन्स में है, लेंटिल्स में है। इस तरह से ल्यूपिनी जो है ये ल्यूपिनस में होता है। ऐसे ही जो मेलिलॉटी है, मेलिलॉटी जो है स्वीट क्लोवर में होता है, अल्फाल्फा में होता है, या फेनुग्रीक में होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजोबियम है जो अलग अलग जो है स्पीशीज ऑफ क्रॉप्स में है। तो इनके अंदर इनका काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो सो इफ़ आई समराइज माय टूडेज लेक्चर, इसमें क्या हमने किया है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइम हमने कौन सी की थी, फर्स्ट टाइम हमने की थी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। सेकंड जो टाइप है वो है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर से जैसे नाम से पता चल रहा है कि इनका जो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब थिक होते हैं या ज़्यादा होते हैं, किससे कंपेयर में, बल्कि से, जो हमने पहले कर चुके हैं। तो इसमें हमने जो मेन की हैं वो 3 मैन्योर इसकी एग्जांपल है, जो ऑयल केक्स हैं,
ब्लड मील हैं और द फिश मैन्योर्स हैं। तो जो ऑयल केक्स हैं, ऑयल केक्स हैं दो टाइप के हमने किया, एडिबल और नॉन एडिबल। वो मोस्टली क्या है कि जब हमें सीड में से ऑयल निकाल देना है तो उसके बाद जो भी हमारा रॉ मटेरियल बचेगा, जो भी मटेरियल बचेगा, वो सॉलिड पार्ट बचेगा, ऑयल निकालने के बाद उसको हम बोलते हैं केक्स, बोलते हैं ऑयल केक्स बोलते हैं। तो ये एडिबल है नॉन एडिबल है। उसमें हमने जो नॉन एडिबल जो एनिमल्स हैं उनको एज जो फीड है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। एडिबल है जो खा सकते हैं, ठीक है। जो नहीं खा सकते वो कैस्टर है, कॉटन सीड है, करंजी है, महुआ है, सेफ्लॉर की है। एडिबल जो खा सकते हैं कोकोनट है, कॉटन कॉटन सीड है, ग्राउंडनट है, लिनसीड है, नाइजर है, रैपसीड है, ठीक है, और सीसम है। ये सारे जो है एडिबल है, ये खा सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमने न्यूट्रंट्स भी इसमें क्या है, एनपीके इसमें होते हैं। तो ब्लड मील जो है उसमें क्या है कि एनिमल जो है उनका हमने जो डेड एनिमल्स हैं उनकी जो बोन्स हैं उनका जो उनको हम ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, उनको हम मीट मील बोलते हैं बेसिकली। तो ये भी अच्छा सोर्स होता है प्लांट्स में नाइट्रोजन के लिए। तो उसके बाद हमने किया है कि कमर्शियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या हैं। कमर्शियली, और कमर्शियल का मतलब जो मार्केट में लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर पाएँ उनको हम कमर्शियल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यहाँ पे हमने किया है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसमें हमने बेसिकली क्या करना है कि लाइम को डिग्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइम को डिग्रेड करने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हम डिग्रेड करेंगे उसके बाद जो भी फर्टिलाइज़र हमारे पास आएगी उसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलेंगे, जिसमें एनपीके कंटेंट अच्छा होएगा और जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होएगी। तो एक हमने उसके बाद हमने क्या है कि बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे वर्ड मैंने आपको बताया, बायो आता है मीन्स लिविंग। लिविंग मतलब वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम एज अ फर्टिलाइजर, एज अ खाद यूज़ करना है। तो वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, एल्की हैं। इनको हमने डायरेक्टली प्लांट के अंदर अगर अप्लाई करना है, प्लांट की जड़ों में अप्लाई करना है, तो उसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ये 4 टाइप की हमने की है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, उसमें कौन सी है, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, क्लॉस्ट्रीडियम, एसिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, एजोला। और पी सॉल्बलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर जो हमने की हैं उसमें मोस्टली कौन सी आती हैं, उसमें मोस्टली बेसिलस आ रहा है, ठीक है, स्यूडोमोनास और स्पर्जुलस आता है, वैम फंगस जिसको भी हम बोलते हैं, या वी ए माइकोराइजा भी बोलते हैं। तीसरा कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर्स हैं जिनको हम ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिकोलाइस की एग्जांपल्स हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, राइजोबैक्टीरिया है, पीजीपीआर इसको बोलते हैं। ये इसमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं एनहांस करते लेकिन ग्रोथ एनहांस करते हैं। तो इसमें जो हमने फर्स्ट टाइप जो है, 4 टाइप्स हो गई इसकी। फर्स्ट टाइप जो हमने की है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, उसके अंडर हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। सबसे ऊपर कौन सा है, राइजोबियम है। राइजोबियम मैंने आपको बताया जो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि दो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो 2 स्पीशीज़ आपस में मिल रही हैं, तो दोनों जो है बेनिफिटेड है। दोनों का बेनिफिट में एक दूसरे का फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है कि प्लांट जो है उनको, राइजोबियम को अपनी जड़ों में मतलब नड्यूल्स में क्या करेंगे, और नड्यूल्स क्या होता है, जड़ों के ऊपर एक आउट ग्रोथ होती है, उसमें रहने के लिए जगह देंगे। और ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करेंगे सॉलिबलाइज या फॉर्म में या अमोनिया फॉर्म में। तो अमोनिया में कन्वर्ट करके ये प्लांट को देंगे और प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करेंगे। तो इसकी मैंने आपको स्पीशीज़ बताई हैं कि हर एक जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जो फलदार पौधे हैं या फिर वेले हैं, वो जैसे चिकपी है, बीन्स हैं, या फिर सोयाबीन है, लेंटिल्स हैं, ठीक है, पी है। तो इनकी ये स्पीशीज़ जो अभी आप देख रहे हो, साइसीरी, एटलीज, पैनिकम, लेग्यूनोसेरम, ल्यूपिनी, मेलिलोटी, ठीक है, फेनुग्रीक में होती है, जैसे फेजोली या ट्राइफोली, ये सारी जो है ट्राइफोलियम स्पीशीज़ में होती हैं। तो इनकी आपने एग्जांपल यूज़ करनी है कि किस किस स्पीशीज़ में ये वाले राइजोबियम या बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट के लिए हेल्पफुल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड anything not clear, please feel free to talk to me on my WhatsApp number or our class WhatsApp number also. Thank you.